हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा बहुत दिनों से मन था कि एक दिन एक ट्री हाउस पे ज़रूर रुकूंगी और मेरे जैसे काफ़ी लोग होंगे जिनका ये सपना होगा कि एक दिन ऐसे ही खूबसूरत एक ट्री हाउस पे रुके। तो ये जगह उनके लिए बिल्कुल ही आइडियल प्लेस होगी। आज मैं आपको वन ऑफ द यूनिक एक्सपीरियंस के लिए लेके जाऊंगी मिरिक के एक बेहद ही खूबसूरत ट्री हाउस होम स्टे पे, जहां आप रुक सकते हैं एक खूबसूरत डुप्लेक्स कॉटेज में जो कि लिविंग ट्रीज के ऊपर बने हुए हैं। यहाँ आपको बिल्कुल ही जंगल के बीचों बीच रहने का एहसास होगा। ये होम स्टे प्रॉपर टाउन में होते हुए भी चारों तरफ से जंगल और ग्रीनरी से कवर्ड है और आपको यहाँ महसूस ही नहीं होगा कि आप सिटी के इतने करीब रुके हुए हैं। ये होम स्टे मिरिक मार्केट से बस 500 मीटर की दूरी पर है और आपको बता दूं कि मिरिक वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा हिल टाउन है। तो चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ इस अमेजिंग प्लेस से और शेयर करूँगी मेरे यहाँ रहने की एक्सपीरियंसेस। रोड साइड पे इस होमस्टे का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा है कल्प वृक्ष, यानी कि विश फुलफिलिंग ट्री। ये नाम पढ़ते ही ऐसा लगा जैसे कि हम कोई मिराकुलस जगह पे आ पहुँचे हैं। हमें यहाँ पहुँचने में दोपहर के करीब 12 बज गए और कल हम रुके थे लोअर मिरिक बस्ती के एक ब्यूटीफुल होम स्टे रोधी घर में, जिसका वीडियो ऊपर कार्ड पे एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसे भी ज़रूर देखिए। हमारा आवाज़ सुनते ही यहाँ की ओनर प्रीति निशा हमें रिसीव करने आई और ट्री हाउस के बारे में बताते हुए हमें हमारे रूम तक ले गई। सिलीगुड़ी से आप यहाँ डायरेक्ट कैब बुक करके आ सकते हैं या फिर तो आप शेयरिंग में भी आ सकते हैं। इसके लिए आपको सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन या दार्जिलिंग मोड़ से शेयरिंग गाड़ी मिल जाएगी और आपको मिरिक के पुलिस स्टेशन के सामने उतरना होगा। मिरिक के पुलिस स्टेशन चौक से ये ब्यूटीफुल होम स्टे बस 200 मीटर की दूरी पर है। And a species of pine tree. Yeah. So it's alive. Momo is not supposed to be inside. This is like 50 years old. Okay. Yeah, I'll show you your rooms. You can choose any room you want. Okay. No. Okay. So this is the first room. Okay. Wow. And this is the main tree. This is Black Cirrus, we call. Black Cirrus. This is like around like 118 to 120 years old. Okay. Yeah. And I think you saw it in the board. Like it's written Kalpa Vriksha. Kalpa Vriksha. It means wishing tree. Okay. So you can make a wish, and like most of our guests, like who made their wishes, it came true. And yeah, so I've kept towels are there. If you want black tea, it's there. You just have to warm the water. Washroom is there. You have access to the balcony from here. Yes. Right. So this is the first room. And there is one more room up. So you can choose the rooms, whichever you want. Okay. It's very clear today. It's very nice. This is
Yeah, so this is the second room. Same thing, but this one has a bunker up there. So Okay. you can just go and like relax, have your tea there. This is the washroom. Washroom. Okay. And yeah, geyser is there. Paper, toilet paper, soap, Okay. body wash, everything is there. Okay. This is the same tree. That's Yes, also- it's the same tree which Okay. comes, and that's the two branches which Split hits, there. yeah, splits. So we couldn't go any higher from there. Okay. But if you go down and like from the garden, if you look up, you can like actually see like the height where you are. Yes. yes. So you have access out here also to the balcony. And you guys are like really lucky because like you can Yeah. see a really nice view right now from here. Yes. Yeah, it's quite clear. Yeah. It had not been this clear for like, the past many days. Yeah, so yeah, you can just relax outside. Right? It's very nice. Thank you. So would you prefer black tea or milk tea? Black tea. Black tea? Yeah. Alright, so I've kept everything. Sugar is I'll change the sugar for you. Okay. So I think like it's a little bit moisture has been gone there. And lunch, what time would you prefer your lunch? 1:30 to 2. 1:30 or 2? Okay. You can just like give me a text, okay? I'll Okay. show you the way to the kitchen. Okay. Yeah, so freshen up, you can like, and yeah, you have to plug this in because like Mosquitoes. mosquitoes and bugs and all, no? Yeah, because it's like all jungle and forest. So yeah, and if you want to smoke, like ashtrays No, outside. no, you we can don't smoke. smoke. You can smoke. Okay, cool. Okay, so you can just relax. Okay. Alright, if you need anything, like just give me a text. I'll be there. Okay. And Wi-Fi password is here. इतना ब्यूटीफुल कोजी वुडन कॉटेज रूम्स और रूम के बीचों बीच 120 साल पुराना विशिंग ट्री देख के हमारा मन मुग्ध हो गया। ये पूरा ट्री हाउस कॉटेज एक ही ग्रुप को देते हैं। हम 2 जन गए थे तो हमें 2500 रुपये पर डे पर पर्सन पड़ा था, इंक्लूडिंग ऑल मील्स। थोड़ी देर में हम फ्रेश होके किचन में लंच करने चले गए। यहाँ पर आंटी अपने हाथों से बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है, फ्रेशली होम ग्रोन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स से। लंच के टाइम प्रीति निशा हमारे साथ बैठ के ढेर सारे बातें की और शेयर की यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज। इस ब्यूटीफुल से कॉटेज में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। जिनको किताबें पढ़ने का शौक है उन्हें यहाँ कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ने मिलेंगे। लंच के बाद हम कुछ देर रेस्ट किए, फिर पैदल निकले मिरिक लेक घूमने। मिरिक लेक ट्री हाउस से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है और हमें वहाँ तक जाने में करीब 20 मिनट लगे। मिरिक लेक मिरिक का एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। हर कोई जो इस तरफ घूमने आते हैं वो इस लेक को ज़रूर विजिट करते हैं। आप इस लेक के प्लीजेंट एनवायरनमेंट के साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं बोटिंग एंड हॉर्स राइडिंग। इस लेक के दूसरी तरफ है पाइन के घने जंगल, आप उसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उस पार जाने के लिए लेक के ऊपर बना है एक खूबसूरत सा पुल। यहाँ टूरिस्ट के साथ साथ काफ़ी लोकल्स भी आते हैं यहाँ के ब्यूटी को एंजॉय करने। हम आए हैं सितंबर के महीने में। पिछले 1 हफ्ते से यहाँ हर रोज़ बारिश हो रही थी, बट आज का मौसम पूरा क्लियर एंड सुहाना है। हमें यहाँ से कहीं जाने की जल्दी नहीं थी, इसीलिए हम यहाँ बैठ के सुकून से काफ़ी समय बिताए।
बड़े बड़े पाइन ट्रीज के ऊपर से मानो बादल हमसे ही मिलने आए थे। थोड़ी देर ठहरे और हमें एहसास करने दिए उनकी मौजूदगी को, फिर चले गए एक ठंडी ठंडी एहसास देते हुए। न जाने और भी कितना कुछ इजहार करना चाहते थे हमसे, पर वक्त न उनके पास था और ना ही हमारे पास। पार्क बंद होने का समय हो गया था, इसीलिए हम सनसेट को एंजॉय करके अपनी होम स्टे की तरफ चल दिए। हमें पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया और ये होम स्टे लाइट्स में और भी खूबसूरत लगने लगा। आते ही हमें चाय सर्व किया गया। हल्की हल्की ठंड में हम बाहर ही बैठ के चाय का आनंद लिए और फिर रूम चले गए। डिनर हमें अराउंड 8 बजे कॉटेज में ही सर्व किया गया और उसे ख़त्म करके कुछ ही देर में हम सोने चले गए। अंकल से बातें करते हुए हमें मालूम पड़ा कि इस ट्री हाउस से कंचनजंगा दिखाई देती है। हमें बस इंतज़ार था उस लम्हे का जब कल सुबह की पहली किरण कंचनजंगा को सुनहरी चादरों में ओढ़ लेगी, ताकि उस खूबसूरत लम्हे को हम अपनी जहन में हमेशा के लिए कैद कर पाएं। आज सुबह के दिलचस्प नज़ारे देख के हमारी खुशी दुगनी हो गई जब हमें दर्शन हुए माइटी कंचनजंगा की, वो भी अपने ही रूम से। जी भर के कंचनजंगा को देख लेने के बाद हम फ्रेश होके नीचे आए। तब अंकल गार्डन की सफाई कर रहे थे और हमें देख के हमसे बहुत सारी बातें किए। ये थोड़ा सफाई कर रहा हूँ। रेनी रेनी रेनी, अब इसको काटना है फिर। ये लोग सब उड़ाना है। ये बरस बहुत बारिश हुआ। अभी लास्ट के टाइम ज़्यादा बारिश हुआ ना। हाँ हाँ, ये सीजन का है। ये अभी अब ये खत्म होगा, अब ये गोदावरी होगा। और ये सीजन सेकेंड लॉट है फिर फ्लावर्स। फिर ऑर्किड। हाँ, ऑर्किड ज़्यादा विंटर में होता है ना। हाँ, विंटर से शुरू होगा, अप्रैल मई तक रहता है। यहाँ से 45 मिनट में नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। हाँ, क्रॉस करता है। फिर उधर लेकिन नीचे वाला। अच्छा, नीचे रिवर वाला। ओके। लेकिन आप पशुपति जाएंगे तो आपको 35 मिनट्स में गाड़ी में जाना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, कंचनजंगा भी गए? हाँ, ऊपर तक जाते हैं लोग ऊपर तक कंचनजंगा? ट्रैक होता है तो लेकिन बहुत कठिनाई होता है। वो कठिन है। ग्रेनेड बोलता है ना, हाँ। पूरा स्लिपी होता है। तो काब्रू गए आप और कंचनजंगा सब? हाँ, पूरा। और उधर भी जाते थे जो नेपाल वाले जो है? हाँ, नेपाल में भी गया है। हाँ। और ये क्या काला पत्थर बोलता है। हाँ, काला पत्थर जो एवरेस्ट का नीचे वाला है। वही तक गया है। अच्छा। एवरेस्ट तो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट बोलते हैं। बहुत डिफिकल्ट है। बहुत difficult। ये कंचनजंगा भी तो बहुत डिफिकल्ट है। बहुत ये उधर से ये ज़्यादा डिफिकल्ट है। हाँ। हमारा 19,500 चढ़ने के लिए बाप रे, पूरा 5 दिन लगा। 5 दिन। आंटी सुबह की पूजा खत्म करके हमारे लिए चाय लेके आई। मिरिक में संडे को सुबह सुबह वीकली मार्केट लगता है, जहाँ पर लोकल्स अपने खेतों में उगाए हुए सब्जियों को बेचने लाते हैं। चाय पी के हम निकल पड़े मिरिक के मार्केट को एक्सप्लोर करने। होमस्टे से मार्केट पहुँचने में हमें बस 10 ही मिनट लगे। इस मार्केट में ज़्यादातर पहाड़ी सब्जियां एंड फ्रेश ऑर्गेनिक वेजिटेबल मिलते हैं।
हम भी यहाँ से कुछ ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ घर के लिए खरीद लिए और साथ ही में द मोस्ट स्पाइसीएस्ट चिली दल्ले खुर्शानी, जिसको कि यहाँ का जीआई टैग मिला है, उसे भी लिए। होमस्टे की कुछ चीज़ें हमें बहुत ही क्यूट और यूनिक लगे, जैसे कि ये दरवाज़ा, इसे लॉक करने का सिस्टम, इस दरवाजे की कुंडी और साथ ही में ये फुट ब्रिज, ये सब सच में बहुत ही प्यारे हैं। इस होमस्टे में कुछ और प्यारे प्यारे मेंबर्स हैं जिनके साथ खेलते हुए आपका बहुत अच्छा समय बीतेगा। मार्केट से आने के बाद ब्रेकफास्ट में हम पूरी सब्जी के साथ आंटी के हाथों का बनाया हुआ बी का अचार खाए थे, जो कि बहुत ही टेस्टी था। आंटी यहाँ अपने हाथों से बहुत सारे वैरायटी के पहाड़ी अचार बनाते हैं और बड़े ही प्यार से अपने गेस्ट लोगों को सर्व भी करते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम आंटी अंकल हमसे बहुत सारे बातें किए और आंटी हमसे अपने अचार की रेसिपी भी शेयर किए। धूप में थोड़ा सूखा सुखाना है। हाँ, थोड़ा ज्यादा नहीं, उसका वो पानी है ना, वो सूख जाने से अच्छा नहीं लगता। हाँ। और इसी के साथ इस ब्यूटीफुल होमस्टे को अलविदा कहने का समय आ चुका है। हम निकलते वक्त आंटी हमें अपने बागान से बहुत सारे सब्जियां तोड़ के दिए ले जाने के लिए। मेन रोड तक हम पैदल ही जा रहे थे और ये प्यारा सा डॉगी हमारे पीछे पीछे हमें छोड़ने आया। कुछ दूर जाने के बाद हम उसे वापस जाने बोले, बट मेन रोड तक छोड़ने के बाद ही वो वापस गया। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही ऑफबीट ट्रैवल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।